मैं और जो है मैं इस बात को आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि 3 सवाल जो है आपको ध्यान देना है। ये धीरज का विषय को लेकर के परमेश्वर आपकी और मेरे कैसा धैर्यशील है। Now, I'm not sure how old you were when you accepted Jesus Christ as your personal Savior. For me personally, I accepted Jesus Christ as my personal Savior when I was 11 years old. और आप लोगों में से कितने लोग ये है कि कौन-सी उम्र में आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? और लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ जब मैं 11 साल का था, तब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है। I grew up in a family where my dad was also very involved in church, and we had family devotions every single night in our home. So I heard God's word and heard the gospel every single night of my life. और जैसे कि हमारे जो पिताजी थे, अंकल के जो पिताजी थे, वो जो कलीसिया के सेवा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध थे, समर्पित थे और हमारे घर में जो है, हर रात को हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते थे, परमेश्वर का वचन की शिक्षा होती थी। वहाँ पर मैंने संदेश को सुना, प्रभु का वचन को सुना और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। I have calculated that if I start understanding that God loves me and that I'm a sinner at the age of 5, let's say, and I accepted Jesus Christ at the age of 11, and I heard that gospel every single day of my life, I rejected God more than 3,000 times. और आप देखिए कि क्या है कि मैं 5 साल से प्रभु का जो वचन को मैं सुनते हुए आ रहा, मान के चलिए कि 5 साल से सुना और 11 साल में मैंने जो है प्रभु का ग्रहण किया। यदि आप लोग गिनोगे तो करीबन 3000 बार प्रभु यीशु मसीह को मैंने तिरस्कार किया है। When we say that God is long suffering towards us, we have to understand how many times did God come to you before you were willing to accept him as your personal savior. और जो है हम लोग इस बात को, इस सवाल को कर सकते हैं कि जो है प्रभु का उस धीरज के विषय में यदि हम लोग जाने तो कितने बार प्रभु आपके सामने आपके पास आए हैं और प्रभु को आपने ग्रहण नहीं किया, आपने तिरस्कार किया है। Now think about it. If God judged you for your sin before you were saved, would you be happy? और आप मान के चलिए कि आप जो पापी थे, आप उद्धार ही नहीं पाए हैं, उस वक्त ही प्रभु यदि आपको न्याय करता, आपको दंड देता, क्या आप खुश होते? This verse tells us that God is long suffering, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. He is waiting for people to accept him as their savior. और अब देखिए ये वचन जो है हमें ये बताती है कि प्रभु जो है बहुत धीरज धरने वाला परमेश्वर, कोई भी नाश ना हो। लेकिन परमेश्वर का यही इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। I was reminded as we have been praying for many people who are suffering from COVID and many people who are passing away. We get news about Christians and believers who are suffering from COVID. But I was having a conversation with a friend of mine, and I asked the question, how many non believers are also impacted by this? And many of them are going into eternity without salvation. Yet God is patient and long suffering, waiting for them, anyone, to come to know the Lord Jesus Christ before they pass. और जैसे कि मेरे एक दोस्त के साथ हम ऐसे बातें कर रहे थे कि बहुत सारे मसीह लोग भी जो है ये कोरोना व कोविड से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग गुजर गए और बहुत सारे लोगों को ऐसा सुसमाचार का अवसर मिल रहा है
प्रभु कितना धीरजशील है कि वो इस ताक में, इस इंतजार में रहता है कि कोई भी नाश ना हो, लेकिन जो सुसमाचार सुन करके मन फिराव का अवसर प्रभु देते रहता है। So when we ask God, where is the God of justice? God has to respond to that because we are challenging the character of God as he is long suffering, wanting that all will trust Jesus Christ. और हम ऐसे ही जो धीरजशील के विषय में यदि लें, तो हम यही सवाल को करते हैं, वो जो है न्यायी परमेश्वर कहाँ है? और हम क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उस न्याय करने का जो गुण के ऊपर हम सवाल उठाते हैं। To answer the question on how God responds, we find the answer in chapter 3 and verse 1, where we और read जो the है fact that God is going to send the messenger of the covenant to show the people the God of justice. और जो है हम लोग परमेश्वर का उस उत्तर को यदि देखें, तो जो है तीसरा अध्याय पहला पद से छठवां पद तक हम लोग इस विषय को देख सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि एक दूत को उनके सामने वो भेजेंगे और फिर उस न्याय को उनके सामने प्रकट करेंगे। This was a prophecy of the Lord Jesus Christ who is going to come as the messenger of the covenant, and he was going to show the world what justice looks like. और हम लोग इस बात को देखते हैं, यहाँ पर जो है एक भविष्यवाणी को देखते हैं, जिस भविष्यवाणी जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं, वो सभी लोगों को न्याय करेंगे, उस विषय को यहाँ पर बताया गया है। We know the story because we the Lord Jesus Christ already came 2000 years ago. So let's consider who the messenger of the covenant is and the God of justice and how he showed justice. और आइए हम लोग इस बात को तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, लेकिन ये जो भविष्यवाणी जो कहा गया है, जो वाचा का दूत कौन है और प्रभु यीशु मसीह में ये कैसा पूरा होता है, प्रभु यीशु मसीह ने कैसा उस न्याय को जो है लोगों के सामने प्रकट किया है। When we think about justice, we have to think about the law. So I would like to have somebody read Romans chapter 3, verse 19 and 20 to understand what the law says, first of all. और जो है न्याय के विषय में यदि देखा जाए, तो परमेश्वर ने जो है कैसा न्याय किया है, उससे पहले हमें व्यवस्था का विषय को समझना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में कोई है तो फिर रोमियो उसका तीसरा अध्याय 19 से 20वां आयत को आप लोग पढ़ने में मदद करिए। There we read the fact that all people are guilty before God based on the law. और उसमें हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सामने हम जानते व्यवस्था हैं के अनुसार सब के सब जो है वहां पर दोषी है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो कुछ कहती है, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। So here we see the fact that before God, every single person, including you and me, is guilty of sin. But what is the justice of God based on that? और जो व्यवस्था के अनुसार प्रभु के सामने हम खड़े होते हैं, तो हम सब के सब जो है गुनहगार हैं, अधर्मी हैं, तो उसका न्याय क्या है? So let's keep reading. In Romans chapter 3, verse 21 and 23, we see the perfection of God. In और verse 19 and 20, we read the fact that we are sinners. In 21 and 23, we see God being perfect. और जो है 19 और 20 आयत में हम लोग इस बात को देख रहे थे कि हम सब के सब पापी हैं। आइए 21 पद से लेकर के 23वां आयत तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर जो है वो धर्मी है, पवित्र है, इस विषय को देख सकते हैं। परंतु
अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So here in this passage, we see the fact that God's righteousness is revealed in Jesus Christ. और इस अध्याय में हम लोग इस बात को देखते हैं, परमेश्वर का उस धार्मिकता यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। So we have sinners and we have a righteous God. And how is he going to reconcile that and show justice when Jesus Christ came? और अब देखिए यहाँ पर एक पापी का झुंड है, परमेश्वर धर्मी है, तो इन दोनों के बीच में कैसे मेल मिलाप होने वाला है और अपना न्याय को जो है कैसा प्रकट करने वाला है। So let's keep reading in Romans chapter 3, verse 24 and 26. There we find that Jesus Christ became a substitute for the punishment of sin so that God can be 100% just and justifier of what he is doing. और आइए हम लोग जो है तीसरा अध्याय 24वां आयत से लेकर के 26वां आयत तक हम लोग फिर से पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक हमारे बदले वो जो है क्या हुआ है ना अपना लहू को बहाया है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन अपनी इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट नहीं करता, जिससे कि वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। So here we see the fact that Jesus Christ replaced in man's sin with his righteousness, and in replacing our sin with his righteousness, he demonstrated his justice. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का पाप के बदले प्रभु यीशु ने क्या किया है ना अपना धार्मिकता को वहां पर जो है स्थापित किया है, वहां पर जो है मौजूद किया है, और उसी तरीके से परमेश्वर ने अपना न्याय को सभी लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। For God to show justice, he had to pay for our sins some way. And once he paid for it, then I am free from the penalty of sin. और जैसे कि हम लोग देखते हैं अपना पाप की प्रायश्चित के लिए परमेश्वर को उसका परिणाम भुगतना जरूरी है, किसी भी तरीके से प्रभु ने उस पाप का प्रायश्चित किया है, उस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मोल चुकाया है, उसी तरीके से ये पापी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धार्मिक गिना गया है। We find in 2 Corinthians chapter 5 and 21, where we read the fact that Jesus Christ became, who did not know, he knew no sin, but became sin for us. He became sin for us, that we might become the righteousness of God in him. जैसे कि हम लोग दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21वां आयत में इस तरीके से पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। So we see that Jesus became sin so that we who are sinners can become righteous. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है पाप ठहरा ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में धार्मिक गिने जाएं। So when we come back to Malachi
And the question that the people asked, where is the God of justice? This is how God responded. He was going to send his messenger of the covenant, which is Jesus Christ, to take the punishment of sin and give sinners his righteousness and show justice in the process. और हम लोग इस बात को देखते हैं जब मलाकी का पुस्तक में हम लोग आते हैं तो ये सवाल करते हैं कि जो है तुम्हारा उस न्याय कहाँ पर है। परमेश्वर इस बात के लिए वो थक गया है। क्या है ना परमेश्वर अपना किस तरीके से अपना जवाब को देते हैं, ना परमेश्वर अपना उस दूत को जो है भेज करके प्रभु यीशु मसीह क्या किया है ना अपना पाप को जो है उस दंड को अपने ऊपर ले करके सभी लोगों को धार्मिकता की छाप लगाई है और उसी तरीके से अपना न्याय को प्रकट किया है। So God demonstrated his righteousness towards us in that he took our place and he made us just, and thus he was long suffering, waiting for you and I to accept that payment that he has provided and the salvation that he gives. परमेश्वर जो है बहुत धैर्यशील है। कैसा ना परमेश्वर अपने पाप का उस दंड को अपने ऊपर ले लिया और जो है वो हमारे लिए पाप ठहरा और उस मोल चुका करके आपको और मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया है। Now, since this is a Bible school and you have been studying the Bible, I'm going to ask a very challenging question, and that is, how come I cannot pay for my own sin? और आप लोग बाइबल स्कूल में अध्ययन करते हैं, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से मैं करना चाहता हूं कि मैं अपना खुद का पाप के लिए उसका जो है परिणाम मैं खुद उस पाप के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, उस पाप का मोल मैं नहीं चुका सकता हूं। आप लोग कैसे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? Because at the end of the day, if there's sin and somebody just has to pay for that sin, why can't I pay for that sin and redeem myself? और जो है आप पाप करते हैं उस दिन की आखिरी में आप उसके लिए मोल चुकाते हैं, जैसे कि उसने चुकाया मैं क्यों नहीं चुका सकता। I'm going to illustrate something through a story and hopefully you will understand. मैं कहानी बता करके आपको इस बात का जो है विस्तार रीति से व्याख्या करना चाहता हूं ताकि आप उस विषय को समझ पाओ। Imagine a young boy who is a teenager, 13, 14 years old. He's at school. And while he's at school, he goes to another 13 or 14-year-old boy and he gets into a fight and he starts it. He punches him really hard and he starts that fight. And what is the punishment that that boy will get? और अब मान के चलिए कि एक जो है 13 या 14 साल का लड़का वो स्कूल में पढ़ता है। वो लड़का अपने दोस्त के पास, दूसरे लड़के के पास, उसी उम्र के पास जाता है और फिर बाद में दोनों की झगड़ा लड़ाई होती है। वो जो है उसको मारने लगता है, बहुत जो है गुस्सा मारने लगता है, अपना मुक्का मारने लगता है। तो उसके लिए उसका दंड क्या होगी? Now, he will be sent to the principal or the head of school, and there will be some punishment that he will have for starting that fight and hitting that boy. और जो है उसको क्या किया जाएगा ना, जो स्कूल का अध्यक्ष होते हैं उनके पास उसको भेज दिया जाएगा और फिर उस लड़ाई के बदले जो है उस लड़के को जो है आखिरी में दंड मिलेगी। Now, if that same boy went to a teacher in that school and punched the teacher, what would the punishment be? और वही लड़का मान के चलिए वो स्कूल का शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक को वो मारने लगता है, तो उसके लिए वो दंड क्या होगी? He would be suspended. He would have to leave the school. They would remove him from the school.
और उसको जो है स्कूल से बहिष्कार किया जाएगा, उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। Why is the punishment different? All he did was punch the boy and he punched the teacher. Why is the punishment different? It's the same action and the same offense. Why is the punishment different? और अब देखिए कि जो है वो लड़का ने क्या किया है, अपना दोस्त जो था उसको उसने मारा, वही तरीके से मुक्का मारा। और वैसे ही है वो शिक्षक को भी उसने मुक्का ही मारा, एक ही तरह का कार्य किया है। लेकिन उसको जो है अलग अलग तरीके से दंड क्यों दिया जाता है? The reason why the punishment is different is because the teacher has higher authority than the other boy that he punched. So the offense is greater, although the same action is greater because of the authority of the teacher. और अब देखिए कि जो है वो दंड इसीलिए अलग अलग हो रही है क्योंकि वो शिक्षक जो था, वो शिक्षक ऊंचे पद पर है, और दूसरा यदि देखा जाए तो वो जो लड़का है वो निचला स्तर पर है। इसीलिए वो दंड जो है अलग अलग हो रहा है। Now, if that same boy went outside of school and decided to punch a police officer, the punishment would be even greater than the punishment that he had when he offended the teacher. और आप देखिए कि वो लड़का यदि क्या करता, ना वो जा करके रास्ते में कोई पुलिस वाला है उसको यदि मारता, मुक्का मारता, तो उसका दंड और गंभीर होता और जटिल होता, जो स्कूल का शिक्षक से बढ़ करके उसको और दंड दी जाती। That if that same boy decided and somehow is able to go and punch the president of India or the prime minister of India, he will be charged with treason, and that's much greater punishment. और वो ही लड़का यदि ये कोशिश करता कि भारत के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को मारने का प्रयास करता, तो वो लड़के का जो है दंड और जटिल हो जाता और कठोर होती। Now, the action and the offense is the same from the boy to the teacher to the police officer to the president. और अब देखिए वो कार्य तो एक ही कर रहा है, पहले तो वो लड़का को मारा, मुक्का मारा, और जो फिर बाद में शिक्षक को, पुलिस वाला को, फिर बाद में जो है प्रेसिडेंट हो या फिर जो है हमारा प्रधानमंत्री हो, उनको वो एक ही कार्य तरीके से वो मारने का प्रयास कर रहा है। काम एक ही है, दंड अलग अलग। The payment or the punishment based on each offense is different and greater based on the authority level of the individual that you offended. और अब देखिए काम तो एक ही है लेकिन दंड अलग अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे लोग जो है ऊंचे ऊंचे स्तर पर है और उनकी अधिकार, उनकी सामर्थ अलग अलग है, उनके विरुद्ध उसने पाप किया है, इसीलिए वो दंड भी अलग अलग है। So now, if I offended a holy, eternal God, what kind of punishment do I deserve? और यदि मैं उस पवित्र परमेश्वर का विरोध काम करता हूं, तो मुझे किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, किस प्रकार की दंड मुझे मिलनी चाहिए? You see, my punishment, because my offense is against an eternal God, has to be an eternal punishment. और अब देखिए क्या है, ना मैं अनंत कालीन उस परमेश्वर उसके खिलाफ मैं पाप कर रहा हूं, तो मेरा पाप भी अनंतता के लिए होना चाहिए। Since I am not an eternal being, I cannot pay for an eternal offense. मैं जो है ऐसा एक जीव हूं जो अनंतता तक रहने वाला नहीं हूं, इसके लिए उस अनंतता का, उस दंड के लिए मैं उसका जो है मोल नहीं चुका सकता। So, to pay for my offense of sin against an eternal God had to become sin for me and take that punishment. And so, only
God himself could pay for my punishment and show justice based on that offense. और जैसे कि अनंतता का परमेश्वर को ही इस अनंतता का दंड को मिटाने के लिए जो है वो ही कर सकता है, क्योंकि मैं अनंतता नहीं हूं, मैं उसके लिए कुछ मोल नहीं चुका सकता, इसीलिए स्वयं परमेश्वर को ही उस मोल को चुकाना जरूरी है। You see, when I lie, when I steal, when I have a bad thought, when I get angry, all of these offenses are against a holy and eternal God, not just mankind. And so God himself had to show justice by coming down through the Lord Jesus Christ and take my place to show justice at his level. और जैसे कि हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी अन्याय या अत्याचार या फिर सोच और विचार में भी हम लोग पाप करते हैं, वो अनंतता का परमेश्वर उसके लिए जो है जरूर वो दंड देता है, उसके लिए वो खेदित होता है, और जो है इसके लिए परमेश्वर जरूर दंड भी देता है। So we see that God answered this question. Where is the God of justice? He sent his son as the messenger of the covenant and showed justice. और देखिए न्याय कहाँ है, उस न्याय का जो है वे लोग जब पूछ रहे हैं, ऐसे वक्त में परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेज करके उस न्याय को उसने दर्शाया है। Now, the question that we have to answer is what happens if I, who have offended a holy God, do not accept that eternal payment that he is freely giving to us? और आप देखिए कि आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य को करते हैं, पाप करते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे मुफ्त में उस न्याय को जो है वह मोल चुकाना चाहता है। क्या आप और मैं उस मुफ्त में दिया हुआ चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं क्या? We find that this same Jesus is coming again one more time. And the question that Malachi poses is who can endure the day of his coming? और एक और बात प्रभु यीशु मसीह के जो है आगमन के विषय में हम लोग देख सकते हैं, वहां पर इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी जो आगमन का दिन को कौन सह सकता है। So in this passage, we read what happens when he comes a second time and he's going to show justice again. And in that justice, those who did not accept his payment originally will spend eternity trying to pay for that punishment, but never can. But they will be separated from him for eternity in the lake of fire. और आप देखिए इस बात को हम लोग देखते हैं, पहली बार तो उसने न्याय करने के लिए आया और उस न्याय को उसने दर्शाया है, उसके लिए उसने मोल चुकाई, लेकिन दूसरी बार जब वो आ रहा है तो वो उसका न्याय को कौन सह सकता है? वो क्या है? पहली बार आकर के उसने मोल चुका करके गया है, जो लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे उन लोगों को परमेश्वर जो है न्याय करके दंड देने वाला है। Can someone read this passage, Malachi chapter 3, 2 through 6, to understand what it's going to be like when he comes a second time to show justice? और आइए हम में से कोई पढ़ने में मदद करे, मलाकी उसका 3रा अध्याय 2रा पद से 6वां पद। दूसरी बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसका न्याय कैसे होने वाली है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला सोने के और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों और के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा।
सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। So when we come to ask the question, you have wearied the Lord with our words by saying, where is the God of justice? और हम लोगों ने क्या किया है ना, परमेश्वर को उकता दिया है हम ये सवाल करके कि परमेश्वर, वो न्याय परमेश्वर कहां पर है। We say this when we don't appreciate God's love, and we don't appreciate God's holiness, and we don't appreciate God's justice. और हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसकी पवित्रता को आदर नहीं करते, परमेश्वर की उस न्याय को आदर नहीं करते, परमेश्वर की उस दया को हम लोग आदर नहीं करते। इसीलिए हम ये सवाल को करते हैं, कहाँ है वो न्याय परमेश्वर? We find the attitude that we should have towards God's justice in this passage in Psalm 73, where we read, whom have I in heaven but you, God? And there is none upon the earth that I should desire besides you. I wonder if somebody could read verse 25 through 28 of Psalm 73. आइए भजन संगीता उसका 73वां अध्याय उसका 25वां आयत से लेकर के 28वां आयत तक हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वर्ग में मेरा भजन 73 का कितना सर? भजन संहिता 73 अध्याय शिविर भाई, भजन 73 का 25 से 28। ओके। मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो मुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। So when we think about the justice of God, I hope you and I, along with the psalmist, can say, it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works. और जैसे कि हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब आप और मैं उस न्याय के विषय में यदि देखें, प्रभु को आपको और मुझे भरोसा करना जरूरी है, तो हम लोग इस बात को हम लोग जो है पढ़ सकते हैं। So when we think about what the people have done, we see that they wearied God, but then God has another burden that we want to cover this evening, and that is we rob God. और जैसे कि ऐसे ही प्रभु का बोझ जो है उस इज़राइल के प्रति है, और उसके साथ साथ उन लोगों का सवाल एक और है कि आज का हम लोग अध्ययन में इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रभु का जो है चोरी किया है व प्रभु से हमने लूटा है। You'll notice in chapter 3 and verse 6 and 7, God says, for I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed, O son of Jacob. Yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? और हम लोग जो है मलाकी का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 6वां और 7वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण मैं, हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विरोध ही से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। Here we see the fact that he goes on to say, will a man rob God? How do I return to God? And he asks another question, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. और जैसे कि हम लोग फिर से परमेश्वर इस तरीके से कहते हैं 8वां और 9वां पद में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और
उठाने में भी तुम लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Now, here, the question that we have to ask ourselves is, why is it important to give to the Lord, and how do I give to the Lord? और ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए रखता है कि परमेश्वर को जो है देना किस लिए महत्वपूर्ण है, और वो परमेश्वर को मुझे किस तरीके से देना चाहिए। Let's read verse 10 through 12 as Malachi answers this question, where we find that we are to give to the Lord and he will bless based on that. और 10वां पद से 12वां पद तक आइए हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर मलाकी इस बात को जो है व्याख्या करते हैं, जिस तरीके सारे से हम दशमांश देते हैं उसी तरीके से हमें आशीष मिलती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Sometimes this verse has been abused by saying that, if you give 100 rupees, you will get 1,000 rupees back. That is not what this verse is saying. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वचन को लेकर के जो है इस तरीके से वे लोग बताते हैं, तुम यदि प्रभु के लिए 100 रुपए दोगे तो तुमको 1000 रुपए मिलेगा, लेकिन ये वचन इस तरीके से नहीं बताया गया। The question that this passage is answering is, how have we robbed God? We actually are in debt to what we should give to God. और ये सवाल का जवाब इस तरीके से इस अध्याय में दिया गया है कि वो लोग पूछते हैं कि परमेश्वर को हमने किस तरीके से लूटा है, उसका उधार जो है कैसा चुकाया जाए, उसका सवाल का जवाब जो है यहाँ पर दिया गया है। The question is, how does God want us to give to him and his service? और जो है ये सवाल ये उठती है कि परमेश्वर के लिए और उसकी सेवा के लिए हम किस मनसा से और किस तरीके से उसको दें। Consider Hebrews chapter 13 and verse 16, where God says, do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased. और जब हम इब्रानियों का पुस्तक उसका जो है 13 अध्याय और 16वीं आयत में इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, पर भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। Another verse for you to consider in 2 Corinthians chapter 9 and verse 7, where we read, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, but God loves a cheerful giver. और जो है दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 7वां पद में इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Now, one more verse in 2 Corinthians 8 and verse 12, where we read, for if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has and not according to what he does not have. और हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार जो उसके पास है ही नहीं। God is not asking us to go into poverty to go give to the Lord. और जो है परमेश्वर हमें ये नहीं पूछता कि हमारा गरीबी में जा करके प्रभु को दें। Every blessing that you have, be it a house,
be it family, be it food, be it money, work, any of those blessings, every single one we received because God gave it to us. और हम लोग इस तरीके से देखते हैं, आपके और मेरे पास में भले घर हो या फिर जो है खाने के लिए भोजन वस्तु हो या फिर पैसा हो, सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ चीजें हैं। And we can give as the Lord has blessed us. It is not about how much we give. It is based on our willing mind and being willing to share what we have with for God's work. और जो है ये इस तरीके से है, हम कितना देते हैं वो मायने नहीं रखता। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उसको एक उदारता के मन के, एक अपना दिल की इच्छा के साथ जो है हम प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा के लिए देना जरूरी है। You should not give because you feel guilty. और इस तरीके से आप मत दे कि आप दे करके फिर बाद में पछताता रहे, अरे मैंने क्यों दे दिया। You should give to the Lord because you purposed in your heart to give to the Lord and you are willing to give to the Lord. और आप इस तरीके से दीजिए, अपना मन में आपने ठान लिया है कि प्रभु का सेवा के लिए आप देना चाहते हैं, इसीलिए आप दीजिए। So when we think about the blessings of God, consider the idea that the people up until now in Malachi have despised the love of God, they have despised the law of God, they have despised the priesthood of God, they have despised marriage, and they have despised the justice of God, and now they're despising the blessings of God. और आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से परमेश्वर का जो है तिरस्कार किया है, परमेश्वर को तुच्छ जाना है। वे लोग परमेश्वर का प्रेम को जो है तुच्छ जाना है, परमेश्वर का जो उस व्यवस्था को उन्होंने तुच्छ जाना है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का उस याजकों का जो समाज थी उसको उन्होंने तुच्छ जाना है। परमेश्वर का ने जो शादी को स्थापना किया था उसको उन्होंने तुच्छ जाना है। उसके साथ साथ परमेश्वर का न्याय को उन्होंने तुच्छ जाना है। अभी हम लोग देखते हैं कि वे लोग परमेश्वर का उस आशीष है, परमेश्वर का उस अनुग्रह के दान है, उसको भी उन्होंने तुच्छ जाना है। You see a downward progression of how much they're despising God. और अब देखिए कि वो लोग ऊपर से नीचे 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 की ओर होते हुए आ रहे हैं और किस तरीके से परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। We've come to a portion in Malachi that is very, very saddening when God shares a last burden, and that is we have spoken against God. और आप देखिए कि हम लोग जो है जब हम लोग नीचे के ओर आते हैं तो जो है वे लोग इस तरीके से सवाल करते हैं, हमने परमेश्वर का विरोध किस तरीके से किया है। Notice what verse 13 and 15 of Malachi chapter 3 says. It says, "Your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you? You have said, it is useless to serve God. What profit is it that we have kept his ordinances and that we have walked as mourners before the Lord of hosts? So now we call the proud blessed, for those who do wickedness are raised up. They even tempt God and go free." और हम लोग जो है तीसरा अध्याय उसका 13 पद से लेकर के 15 पद में इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध छिछाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। The question we have to ask ourselves is, how बताए did हुए God कामों को पूरा किया है और I'm sorry, the question we have to ask ourselves is, how did God's people get to this point where they're speaking against God? और अभी एक सवाल ये उठता है कि इस मुकाम पर जो है परमेश्वर का लोग कैसे आ पहुंचे और परमेश्वर का विरोध ऐसा वो लोग कहने लगे हैं।
Notice what they're saying. They're saying it is useless to serve God. और आप देखिए वे लोग किस तरीके से बातें करते हैं कि वे लोग कहते हैं कि परमेश्वर का सेवा करना व्यर्थ है। They're saying, why should I keep the ordinances or the law of God? और मुझे जो है क्यों उस परमेश्वर की व्यवस्था को मुझे पालन करना जरूरी है। We find that it's a progression to a point of deep despair and where they speak against God. और आप देखिए वे लोग किस तरीके से निचले स्तर में वे लोग गिरते जा रहे हैं। वे निराशाजनक वे लोग काम कर रहे हैं और परमेश्वर को जो है वे लोग जो है किस तरीके से उन लोगों को परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। This book is a book of warning in which it tells us, we should appreciate the love of God, because when we stop or when we start despising the love of God, we start despising the law of God. When we do that, we keep progressing to a point in where we read in chapter 3 that they despise the service for God. और आप देखिए ये जो पुस्तक है ये चितौनियों का व चेतावनी देने वाली पुस्तक है। जब हम परमेश्वर को उस प्रेम को जो है तुच्छ जानते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो उस परमेश्वर का व्यवस्था को भी हम तिरस्कार करते हैं। उस तरीके से हम और निचले स्तर में गिरते जा करके उस परमेश्वर का सेवा को भी हम तुच्छ जानने लगते हैं। Now, we should guard our own hearts against this, because we should go back and look at how much God has loved us. We should go back and look at how we should love the law of God, how we should love the work of the priests of God, how we should love the justice of God, how we should appreciate the blessings of God, and how we should appreciate the fact that God is even willing to use us for his service. और जो है हम लोग सबसे पहले ऐसे जो है तुच्छ जानना या फिर तिरस्कार करना, नीचा दिखाना, ये सब चीजों से अपने दिल को जो है बचा करके रखना है। परमेश्वर का उस प्रेम को हमें आदर करना है और फिर परमेश्वर का उस व्यवस्था है, उस व्यवस्था के प्रति हमें प्रेम करना है। और उसके साथ साथ जो याजकों का समाज है, वो याजकों का काम को भी हमें जो है आदर देना है। शादी को लेकर के हमें जो है गंभीर होना है, परमेश्वर का उसका न्याय को लेकर के हमें आदर करना है, परमेश्वर का आशीष की आदर करना है और उसके साथ साथ परमेश्वर की जो सेवा है उस सेवा को भी हमें प्रेम करना है, आदर करना है। God is a good God. And next session, we're going to look and see the fact that although the people are despising God in many ways, he still has a few people that are still praising him, still worshiping him, still giving him glory, and he gives promises towards those who are willing to follow him. अगले सत्र में हम लोग इस बात को देखेंगे कि जो है भले ही जो है परमेश्वर को वे लोग पुकारते हैं, थकाते हैं, चोरी करते हैं, फिर भी परमेश्वर जो है करुणाकारी है, दयालु है। और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं अभी भी परमेश्वर को जो है प्रेम करते हैं, परमेश्वर की उस व्यवस्था को आदर देते हैं, परमेश्वर की उस सेवा को जो है वे लोग महत्व देते हैं। May we guard our hearts so that we don't despise anything that God has done for us, and where we can praise him and give him glory in service for him. मेरे प्यारो, आइए अपना दिल को जो है ऐसे कार्य करने से हम जो है उसको सुरक्षित रखें, वो ऐसे काम करने ना दें। परमेश्वर का उस प्रेम को हम समझें और उसके साथ साथ परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर की सेवा के प्रति आदर की मनोभाव के साथ उसकी सेवा हम करें। I pray you understood what we talked about today and are able to apply it into our own lives, and trust that he will lead us and guide and direct us as we live in this world for him. May his name be glorified. परमेश्वर की स्तुति हो कि मैं समझता हूँ आज की जो वचन है आप लोग समझे होंगे। परमेश्वर हम सबको जो है उसी तरीके से समझने के लिए और उसी अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Nelson uncle, thank you so much for the wonderful teaching. It's true that